Hello, sir. Good evening. Hi, Suyog. Good evening. Sir, can you come live because by seeing by past two webinars of NCDX, I was Uh-huh. having problem to log in WebEx. Mhm. So I can't. So I was not seeing the image of the moderator. Okay. Hi, see, Suyog, what happens is that currently we are working from home at the moment. So I Okay. think we all are using the home internet. So if you switch on the videos, Yeah. so then the internet get disturbed. So mostly I believe like Okay. Okay. I Okay. would No be problem, following. sir. I understood. So you are Huh? saving the bandwidth. Okay, sir. Yes, yes, Suyog. Yeah. Yes, Suyog. So what do you do, Suyog? Yes, sir. You do commodities trading? No, sir. Only Okay. equity, but I'm willing to do in uh, trading in commodity. Alright, great. I hope this webinar would be beneficial for you. And if there are any questions, you can post this presentation. So I would be just uh, opening it. Yes, sir. Sir, if we want to register on NCDX, is there any kind of restrictions? Means the brokers can only register, or uh, the students can also be get register on the website. Yeah. So, uh, am I audible now? Yes, sir. Your audible. Your presentation is also Visible. seeable. Yes, yes. Yeah. We can see it. Show you. Yeah. Am I audible now? Yes, sir. Clearly. Okay. See, what happens is Suyog is that for opening an account at NCDX, you need to be 18 plus by age. And if your account is open in equity, then there is no issue. You can do in commodities also. Okay. No, I was asking Yes. especially on NCDX site. When I'm going No, through the website now, they're telling of sign in or sign up. no, you see, those are for newsletters and all. Okay. But I believe if you want to come up as an investor, so there is no harm. Means if you can trade in equity, you can trade in commodities as well. Okay, sir. So right now, moment I'm getting lot of new informations from NCDX, which was I was not able to take it. Sorry, come again. I lost your point. So by seeing past 1 year, NCDX is doing a good job by giving the lot of information that previously we were not able to take it. Yeah, And they are but giving a now, proper information, means we should not do a double trading, or we should not go through the
some unknown fairs means we should go by legal terms. Yes, yes, yes. See, actually, that is the case. See, the whole objective of organizing these webinars are that to educate the client what are his rights and what he should do and what he should not do. So I believe that if a client is well equipped with what he needs to do and what he does not need to do, and he is well aware about his rights, so I think nothing wrong will happen. See, when you come into trade, the trade has got its own benefit and own evils as well. So if you are on the right side and if things are on the right way, nothing will happen. But what by doing these webinars and by creating an awareness between the people, what we do is that people should not fall into bad hands because there are a lot of dabba trading, lot of things that are taking place which is not good for an investor. So with this whole objective, these webinars are organized in two fashion. First thing is to educate the person on the basis of the commodity, and then what he should do and what he should not. So that's the whole purpose. And thanks for this. I will pass on your message to the highest authority that people are getting benefit from these. Yes, sir. That's Sir, if we, sir, if we want to see the past webinars, so we can go through by signing it, and we can again revise all the webinars once again. Suyog, I'm not aware about these, but you can what you can do is we have an option of there's a website by we have a mail ID ask us at ncdx.com. You can Okay. drop an email over there, and I think from there we would be able to guide you that how you can get the clippings, or although we keep the recordings and all, but I think from there you can get it that the past data. Yes, sir. Okay, sure, sir. Sure. Thanks a lot, sir. Yeah, thank you. We are waiting for the participants to join, so we would be starting in another 2 minutes, please. गैस कितनी तो साथ है उसको लिया उसको उसको फिर जो कार्ड वाला वो कार्ड दे है ना Uh, Good evening, all. Is my voice audible? Uh, is my voice audible? Yeah, thank you, sir.
सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कि आज शुक्रवार के दिन आप लोग अपना समय निकाल के इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए आए हैं। तो मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि आप लोग आए यहाँ पे। बाकी देखिए, मैं आपको इस वेबिनार के बारे में बताना चाहूंगा। जो इस वेबिनार का, आई थिंक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ इज कंफर्टेबल। आई वुड ट्राई कि टू स्पीक मेजरली इन हिंदी, बिकॉज हम लोगों ने देखा है कि जो हमारा जो फीडबैक आता है, लोग चाहते हैं कि हम वेबिनार्स को हिंदी में रखें। बट मैं कहीं कहीं इंग्लिश भी यूज करूंगा, और जहाँ पे भी आप लोगों को लगे कि लैंग्वेज एक बैरियर है, तो यू कैन जस्ट ड्रॉप एन एसएमएस, तो देन आई विल स्टार्ट ट्रांसलेटिंग इनटू इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल। मैं शुरुआत करता हूँ। तो देखिए, ये जो हम वेबिनार रखे हैं, ये इसका जो होल ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कैसे हम लोग अपने इन्वेस्टर्स को गाइड करें कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है, क्या क्या कमोडिटीज मार्केट में उनके लिए नए नए ऑप्शंस हैं जिसपे वो ट्रेड कर सकते हैं, कैसे वो ट्रेड कर सकते हैं, उनके डूज क्या हैं, उनके डोंट्स क्या हैं, सेबी की तरफ से डब्बा ट्रेडिंग के बारे में क्या क्या कहा गया है, वो गलत क्यों है, और उसके नुकसान क्या क्या है। तो मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार किया है जो मैं रन थ्रू करूंगा। तो जो एक एजेंडा है, मतलब जो एक थीम है जो इस वेबिनार का, वो ये रहेगा। नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स में हम लोग ये प्रेजेंटेशन कवर करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को कमोडिटीज के बारे में, वायदा बाजार के बारे में, हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट इज फ्लोइंग, उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। कुछ कमोडिटीज, कुछ एग्रीडेक्स इंडेक्स के बारे में जिक्र करूंगा, और फिर उसके बाद डब्बा ट्रेडिंग के बारे में बात करूंगा। तो ये एक 20 मिनट का प्रेजेंटेशन रहेगा। उसके बाद हम लोग सवाल जवाब का सिलसिला चालू करेंगे। तो ये एक मेरा फ्लो रहेगा। तो मैं अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कमोडिटीज इको डेरिवेटिव इकोसिस्टम के बारे में बताना चाहूंगा। ये जो पूरा जो कमोडिटी का जो डेरिवेटिव का जो इकोसिस्टम है, उसमें वो कैसे वो उत्पन्न हुआ, क्या क्या उसमें डेवलपमेंट्स हुई, कैसे कैसे उसमें पार्टिसिपेंट्स आए हैं। ये जो हमारे जो कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये नए हैं। देखिए, जो कमोडिटीज डेरिवेटिव ट्रेडिंग की जो शुरुआत हुई वो 1890 के आसपास हुई थी, जब बॉम्बे कॉटन ट्रेडर्स एसोसिएशन ने, इन सब लोगों ने मिलके एक सॉर्ट ऑफ एक एसोसिएशन स्टैब्लिश करी, जहाँ पे वो लोग कमोडिटीज, जहाँ पे वो लोग कॉटन में ट्रेड किया करते थे। उसके बाद जो है 1910 से 1910 से 1930 के बीच में हम लोगों ने देखा है, जूट हुआ, तिलहन हुआ, और भी सारी कमोडिटीज जुड़ी। ये सब कॉटन कॉटन व्यापार और कॉटन एसोसिएशन से प्रेरित होके एक पूरी तरीके से हम लोगों ने देखा है कि धीरे धीरे करके जो कमोडिटीज मार्केट है उसका एवोल्यूशन चालू हुआ। और फिर 1953 में भारत की आजादी के बाद फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का गठन हुआ, जिसके अंतर्गत ये जो कमोडिटीज हैं उनकी ट्रेडिंग को अलाउ किया गया, और एक तरीके से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। और वो जितनी भी कमोडिटीज एक्सचेंज, जो कमोडिटीज ट्रेड होती थी वाया एसोसिएशन, वाया रीजनल स्टॉक रीजनल कमोडिटी एक्सचेंजेस, वो सब फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के अधीन में आके उन्हीं के थ्रू रेगुलेट होती थी। बट लेटर 90s में हम लोगों ने देखा है, 1990s में जो कुछ कमोडिटी, जो रीजनल कमोडिटी एक्सचेंजेस थे उस टाइम के, जो कि अनरेगुलेटेड भी थे या स्टेट लेवल पे थे, उनको ऑन एंड ऑफ कमोडिटी में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव की वजह से, या कुछ जो भी रीजंस उस टाइम पे रहे होंगे, उनको बैन किया गया। उसके बाद 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमोडिटीज मार्केट में डेरिवेटिव ट्रेडिंग की शुरुआत की, परमिशन दी। और फिर उसके बाद सन 2003 में एनसीडीएक्स, एमसीएक्स और एनएमसी, ये तीन नेशनल लेवल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंजेस का गठन हुआ। और उसके बाद सन 2015 में हम लोगों ने देखा, जो कि फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, जो कि 1953 में गठित करी गई थी, उसका विलय सेबी में किया गया सितंबर 2015 में। और आज जितने भी कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं या स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, मतलब एक तरीके से जो फाइनेंशियल मार्केट्स है, वो सब सेबी के अधीन में रहता है, और सेबी ही उनको रेगुलेट करती है। अब मैं थोड़ा सा आपको कमोडिटी एक्सचेंजेस के बारे का स्ट्रक्चर बताना चाहूंगा। सेबी, जो कि सारे एक्सचेंजेस का रेगुलेटर है, उसके अंडर 5 नेशनल एक्सचेंजेस आते हैं: एनसीडीएक्स, एमसीएक्स, आईसीएक्स, एनएससी और बीएससी। इसको सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी को जो गवर्न करते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्न करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है,
वो इसकी देखरेख रखता है। तो अगर आप प्राइमरी देखें टीयर वाइज रेगुलेशन में, एज एन इन्वेस्टर अगर आप लोग देखें, सबसे पहला जो आपका रेगुलेटर होगा वो होगा एक्सचेंज। एक्सचेंज से ऊपर होगी सेबी, और सेबी से ऊपर होगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जिस तरीके से कमोडिटीज मार्केट या स्टॉक मार्केट इंडिया में चलते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे कैसे सन 2015 में जब एफएमसी का विलय सेबी में हुआ, तो क्या क्या नई चीजें थी हैं जो कि सेबी ने इंट्रोड्यूस करी। आप देखेंगे कि जून 2017 में सेबी ने ऑप्शन सिर्फ कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट को अलाउ करा, और साथ साथ में थर्ड कैटेगरी एआईएफ यानी कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स को भी अलाउ करा। जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं वो 1, 2, 3 कैटेगरी में गठित करे गए हैं, और उन सब एआईएफ्स का अलग अलग ऑब्जेक्टिव है कि किस लिए वो बनाए जाते हैं। तो उसमें से जो थर्ड कैटेगरी का जो एआईएफ है उसको अलाउ किया गया है कि वह कमोडिटी वायदा बाजार में भी काम कर सकता है। फिर जो सीरीज जो चालू हुई नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने की, हम लोगों ने देखा कि सितंबर 2017 में सेबी ने इंटीग्रेशन ऑफ इक्विटी एंड कमोडिटी आर्म्स को करा, जिसका आप नतीजा देखते हैं कि पहले आप लोग इक्विटी का अलग मार्जिन दिया करते थे, कमोडिटीज का अलग मार्जिन दिया करते थे। आज हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं अब एक ही मार्जिन के थ्रू काम करते हैं, एक ही जगह से काम करते हैं। तो बेसिकली ये सब जो चीजें हो रही हैं ये एक क्लाइंट बेनिफिट के लिए हो रही हैं। इसके अलावा सेबी ने 2017 में कहा था कि जो बैंक्स की जो सब्सिडरीज हैं जो कि इक्विटी का काम करती हैं, वो लोग कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में भी अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सकती हैं। और इसके अलावा बैंक्स को एक प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर का भी दर्जा दिया गया कि अगर कोई बैंक किसी कमोडिटी वायदा में आके प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर बनना चाहता है, मेंबर्स के ट्रेड क्लियर करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है। उसके बाद सितंबर 2018 में एफपीआई को परमिट दिया गया कि वो इंडियन कमोडिटी मार्केट्स में आके अपना रिस्क को हेज कर सकते हैं जिन लोगों का एक्सपोजर है। उसके बाद मार्च 2019 में जो कि एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ वो है ये कि म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम्स को भी कमोडिटीज मार्केट में अलाउ किया गया कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। वो लोग आके भी कमोडिटी मार्केट्स में इन्वेस्ट और ट्रेड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जून 2019 में जो कि मच अवेटेड डिमांड थी ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट्स की, वो थी कि सेबी ने कमोडिटी इंडाइसेस की ट्रेडिंग भी कमोडिटीज मार्केट में अलाउ करी। जैसे कि निफ्टी होता है, सेंसेक्स होता है, वैसे ही एनसीडीएक्स का अपना एक इंडेक्स है एग्रीडेक्स, जिसकी ट्रेडिंग काफी जोर शोर से एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म पे होती है। तो वो सब जो है वो जून 2019 के बाद ही पॉसिबल हो पाया जब सेबी ने एग्री इंडाइसेस की ट्रेडिंग को परमिशन। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन वो औरों से अलग कैसे होते हैं। देखिए, एक्सचेंज पे जो भी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं वो एक तरीके से प्री डिसाइडेड होते हैं, एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स होते हैं, उसके फिक्स होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि मान लीजिए आप और मैं कोई बायलैटरल कोई व्यापार करते हैं, तो हम टर्म्स एंड कंडीशंस अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि डिलीवरी कल नहीं परसों दे देना, चलो ये क्वालिटी नहीं, इससे 19, इससे 21, इतने में नहीं, इतने में, ऐसी पैकिंग, वो सब चीजें हम सब लोग जो हैं वो आपस में डिसाइड करते हैं। वेरेज एक्सचेंज के कॉन्ट्रैक्ट पे जब आप व्यापार करते हैं तो सब चीजें पहले से प्री डिसाइड होती हैं कि जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट का साइज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट का मार्जिन क्या होगा, मार्क टू मार्केट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट का क्वालिटी पैरामीटर्स क्या होंगे, क्वालिटी की लोकेशन, डिलीवरी की लोकेशन क्या होगी, सौदे की कट ऑफ डेट कब होगी। ये सब चीजें जो है हम लोगों ने देखा है कि ये सब चीजें जो है पहले से प्री डिसाइडेड होती हैं, और जो भी आदमी यहाँ पे व्यापार करने आता है वो उन सब शर्तों को मानता है और उसके अनुसार ही वो उसमें काम करता है। इसके अलावा जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की जो खास बातें होती हैं वो ये होती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइज, यानी कि 10 एमटी का लॉट है, 5 एमटी का लॉट है, 2 एमटी का लॉट है, ये सब पहले से प्री डिसाइड होती है। मार्जिन, देखिए जब भी आप और मैं कोई व्यापार करते हैं, मैं आपसे मार्जिन एक तरीके से पेशगी हो गई। यानी कि जब मैं आपसे व्यापार करता हूँ, मैंने आपसे कहा कि भाई आप 100 टन माल मेरे को 100 रुपए में 1 महीने बाद डिलीवर करेंगे। मान लीजिए अगर उसका भाव 150 रुपया हो गया, तो जरूरी नहीं ना कि सामने वाला उसको ऑनर करेगा या नहीं करेगा। बट अगर हम किसी तीसरे आदमी के पास 10-10 रुपया एज ए मार्जिन के तौर पे हम उसे डिपॉजिट करा देते हैं, तो कहीं ना कहीं उस लॉस को बचाने के लिए या उस चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए हम लोग जो है अपने उसको ऑनर करते हैं अपने कमिटमेंट।
पॉइंट्स को। तो ऐसी ऐसी मार्जिन होता है, मार्क टू मार्केट होता है, जिसको हम आगे जिसका चर्चा करेंगे। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो कि फ्यूचर्स एक्सचेंज पे जो ट्रेड होने वाले जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है उनको थोड़ा अलग और अच्छा बनाती है एज कम्पेयर टू बायलैटरल ट्रेड्स। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सचेंजेस के रोल क्या होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक्सचेंज का जो मेजर रोल होता है वो होता है एफिशिएंट प्राइस रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। जहां पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आके बायर अपने रिस्क को मिटिगेट कर सके, जहां पे आके सेलर अपने रिस्क को मिटिगेट कर सके। मिटिगेट से मेरा मतलब है ऑफलोड करना, कम करना। मान लीजिए मेरे को 100 टन का बायर, मेरे पास 100 टन माल है, बट मेरे को डर है कि भाव आने वाले समय में गिर सकता है, पर मेरे को अभी नहीं बेचना है, तो मैं एक्सचेंजेस पे बेच के अपने आप को हेज कर सकता हूँ। तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। दूसरा है ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म दैट प्रमोट्स इफेक्टिव क्रेडिट डिसीजन। आपको इसमें जो है एक एकदम ट्रांसपेरेंट है, इसमें बायर सेलर आते हैं, अपनी बोली लगाते हैं, बिड लगाते हैं और फिर उनके सामने ट्रेड होता है। देखिए यहाँ एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे बायर सेलर को नहीं जानता, सेलर बायर को नहीं जानता, एकदम सब चीजें ट्रांसपेरेंट है, सब चीजें स्क्रीन पे होती है। तो और तीसरा जो मैं सबसे लास्ट पॉइंट जो है इसके अंदर जो मैं कहना चाहूंगा, ट्रेड गारंटी एंड ट्रांजेक्शनल एफिशिएंसी। देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपने 100 रुपए का सौदा करा, 100 रुपए में आपने कोई भाव बेचा, और मान लीजिए उसका भाव घट के 50 रुपया 40 रुपया लेगा। तो हम लोगों ने कई बार देखा है कि फिजिकल मार्केट में कई बार लोग सौदे मुकर जाते हैं, तो उसमें जो है जो बेनिफिशियरी पार्टी होती है उसको काफी ज्यादा नुकसान होता है। वेयर एज एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता है। एक्सचेंज आपके ट्रेड की सेटलमेंट गारंटी लेके चलता है। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि एक्सचेंज का रहता है। इसके अलावा अगर मैं कमोडिटी कॉम्प्लेक्स की बात करूं कि एक्सचेंज पे ट्रेड होने वाली कौन कौन सी कमोडिटीज हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं सीरियल एंड पल्सेस में बार्ले है, मेज है, व्हीट है, चना है। स्पाइसेस में हमारे पास चिली है, जीरा है, टर्मरिक है। ग्वार में ग्वार गम, ग्वार सीड। फाइबर्स में कोकोड़ है, कॉटन है। ऑयल सीड्स में सोया ऑयल, शुगर। और नॉन एग्री में हमारे पास गोल्ड सिल्वर के अलावा स्टील भी एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे अच्छी ट्रेडिंग होती है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि क्या क्या की फीचर्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन की। बेसिस सेंटर वो लोकेशन होती है जहां का वायदा ट्रेड होता है। जैसे कि मैं आपको एक स्टील का एग्जांपल देता हूँ। स्टील का बेसिस सेंटर मंडी गोविंदगढ़ है, यानी कि जो भी डिलीवरी आएगी जाएगी या जो भी भाव आप स्क्रीन पे देखेंगे वो मंडी गोविंदगढ़ लोकेशन का होगा, यानी कि बेसिस सेंटर का। ट्रेडिंग यूनिट एंड डिलीवरी यूनिट स्टील का 10 MT, यानी कि 10 MT एंड मल्टीपल्स ऑफ 10 MT में ही ट्रेड होगा। 10, 20, 30, 50, 100। तो ये फिक्स है। टिक साइज वो होता है कि डिफरेंस बिटवीन मिनिमम डिफरेंस बिटवीन दी प्राइसेस। जैसे कि अभी स्टील का जो टिक साइज है वो 10 रुपया है। तो मान लीजिए 40,000 पे बायर है और 40,100 पे सेलर है। मान लीजिए बायर को अपना रेट आगे बढ़ाना है तो वो 40,000, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके अपना रेट आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो मिनिमम फर्क है अपनी बिड को चेंज करने का, बढ़ाने का या घटाने का, उसको टिक साइज बोला जाता है। वो 10 रुपया। एडिशनल डिलीवरी सेंटर, बेसिस सेंटर के अलावा और कहाँ आप डिलीवरी दे सकते हैं, वो एडिशनल डिलीवरी सेंटर कहलाता है। फिर क्वालिटी पैरामीटर्स वो होते हैं कि जिस चीज का आप व्यापार कर रहे हैं, जिस चीज को आप ट्रेड कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसकी क्वालिटी क्या है। जैसे स्टील है, स्टील में 2600 वैरायटी पाई जाती है, बट उन 2600 में से कौन सी क्वालिटी, कौन सा ग्रेड, किस चीज का माल हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, वो सब पहले से ही प्री डिफाइंड है। मैच्योरिटी डेट वो डेट होती है जब जाके आप जैसे आप लोगों को सब पता है कि भाई जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है उसको वायदा बाजार बोला जाता है। वायदा बाजार का मतलब कि आने वाली तारीख पे ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। तो वो जो फिनिशिंग डेट होती है, जो आखिरी डेट होती है, जिसे मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट या एक्सपायरी डेट भी बोला जाता है। अब क्या होता है कि जब इतना बड़ा काम होता है, व्यापार होता है फ्यूचर्स मार्केट में, तो उसके कुछ रिस्क पैरामीटर्स भी होते हैं जिसको एक्सचेंजेस ध्यान में रखते हैं और क्लाइंट्स को बराबर बता के चलते हैं। जैसे कि लिमिट ऑफ ओपन पोजीशन। ऐसा नहीं होने का है कि कोई एक क्लाइंट पूरी बाजार की पोजीशन लेके चलेगा। तो यहाँ क्लाइंट वाइज लिमिट्स दी जाती हैं कि भाई आप 5%, 20% या क्वांटिफाइड नंबर 5,000, 15,000, लाख, 1.5 लाख, इससे ज्यादा एक सिंगल क्लाइंट पोजीशन नहीं बना सकता है, जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट को हाईजैक ना। डेली प्राइस लेवल, जैसे कि सर्किट फिल्टर होते हैं कि जैसे करंटली मैक्सिमम कमोडिटीज का जो सर्किट फिल्टर है वो 4+2 है, यानी कि 6% है। तो इसका मतलब ये है एक दिन में कमोडिटी का उतार चढ़ाव 6% ऊपर या 6% नीचे,
इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ये जरूर हो सकता है कि 6% नीचे का लग के 6% ऊपर लग जाए तो वो 12% हो जाएगा, बट पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से 6% नीचे नहीं जाएगा, 6% ऊपर नहीं जाएगा। इसके अलावा मार्जिन लगते हैं, जो मार्जिन यानी कि पेशगी जो आप व्यापार करने से पहले अपने ब्रोकर को जमा कराते हैं, उसके बाद ही ब्रोकर आपको अलाउ करता है काम करने का। फाइनल सेटलमेंट प्राइस, फाइनल सेटलमेंट प्राइस वो प्राइस होता है जिस भाव पे जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग पोजीशन होती है। जैसे कि आज 18 जून को मैंने 20 जुलाई के वायदे में 100 टन स्टील खरीदा, तो मेरे पास 20 जुलाई तक का समय है उस 100 टन स्टील को बेचने का या उसकी डिलीवरी लेने का। मान लीजिए 20 जुलाई तक मैं फैसला नहीं कर पाया कि मुझे ये किस भाव पे काटना है, तो अल्टीमेटली 20 जुलाई की शाम को 5 बजे अगर मेरा 100 टन माल प्लस रह गया तो मेरे को डिलीवरी आएगी, और अगर मैं सेलर हूं तो मुझे डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो जिस भाव पे उसका सेटलमेंट होता है वो कहलाता है फाइनल सेटलमेंट। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एनसीडीएक्स है, अगर आप उसकी रीच, उसकी पहुंच की बात करें तो ये इसका जो प्रेजेंस है वो पैन इंडिया लेवल पे है। जैसे मैंने आपको बताया था, रफली 26 कमोडिटीज हैं जो कि एनसीडीएक्स में अच्छी ट्रेड होती है। तो उसके जो बेसिस सेंटर है आप देखेंगे वो ऑल ओवर इंडिया में स्कैटर्ड है। चने का बीकानेर राजस्थान में है, सोयाबीन का इंदौर मध्य प्रदेश में है, ग्वारगम का जोधपुर राजस्थान में। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि पूरी इंडिया में जो एक्सचेंज के जो है ये सब पूरे स्कैटर्ड है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि एक्सचेंज पे काम करते हैं। आर्बिट्राजर्स, हेजर्स और स्पेक्यूलेटर्स। देखिए आर्बिट्राजर्स वो लोग होते हैं जो कि एक साथ दो जगह पोजीशन बनाते हैं। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि वो जुलाई वाला वायदा खरीद के वो अगस्त वाला वायदा बेचें, या अगस्त वाला वायदा खरीद के जुलाई वाला वायदा बेचें। बेसिकली वो अपनी पोजीशंस को सिंगल साइड ओपन नहीं रखते हैं, वो लोग अपने आप को हेज करके चलते हैं। तो आर्बिट्राजर वो लोग होते हैं जिनका लिमिटेड गेन और लिमिटेड लॉस रहता है। ये लोग बहुत सीमित दायरे में काम करते हैं और जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच का फर्क होता है उसमें काम करते हैं। हेजर्स, हेजर्स जो होते हैं वो लगभग लगभग आर्बिट्राजर्स की तरह मिलते जुलते होते हैं। उनका एक लेग फिजिकल मार्केट में होता है और दूसरा लेग फाइनेंशियल मार्केट में होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं एक स्टील का प्रोड्यूसर हूँ और मेरे पास जो है 100 टन स्टील बना हुआ रखा है, बट मेरा बाजार में नहीं बिक रहा, तो मैं उसे उठा के एक्सचेंज में बेच दूंगा। 5 दिन बाद, 10 दिन बाद मानिए स्टील में 1000 रुपया टूटा, तो फिजिकल मार्केट में भी मेरा 1000 रुपया टूटेगा। जब मुझे मेरा बायर मिल जाएगा, फिजिकल का माल मैं फिजिकल में बेच के एक्सचेंज में अपनी पोजीशन जो माइनस करी है वो प्लस कर लूंगा। ऐसा हो सकता है कि भाई फिजिकल मार्केट में 1000 घटा है तो एक्सचेंज में 1100 घटा होगा या 900 घटा होगा। तो अब पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। तो मैंने क्या करा, अपने आप को एक्सचेंज पे बेच के सेफगार्ड कर लिया, और जो फिजिकल मार्केट का जो भी मेरा लॉस हुआ वो मैंने फ्यूचर्स मार्केट से ऑफसेट कर लिया। तो ये हेजर होता है। या फिर इसके अलावा एक ये भी होता है कि मान लीजिए फिजिकल मार्केट में कोई चीज 100 रुपए की मिल रही है और वो सेम चीज जो है किसी कारणवश एक्सचेंज में 102 रुपए की बिक रही है, तो मैं क्या करूंगा, वो माल फिजिकल में खरीद के अपने गोडाउन में रख लूंगा और एक्सचेंज में बेच दूंगा। और एक्सपायरी आने पे जब दोनों का भाव भाव हो जाएगा एक्सचेंज, और क्योंकि आपको पता ही है एक्सचेंज का जो भी सौदा कटता है वो स्पॉट रेट पे कटता है, तो कभी ना कभी आके फ्यूचर और स्पॉट मिलेंगे, तो उस टाइम पे स्पॉट वाला माल यानी कि जो मेरा गोडाउन का माल है वो मैं फिजिकल मार्केट में बेच दूंगा और एक्सचेंज में जो मेरा माइनस पोजीशन है वो मैं प्लस कर दूंगा। तो बेसिकली जो दो मार्केट की जो डिस्क्रिपेंसी है उनको मैं ईट अप करता हूँ, वो हेजर है। जो तीसरी जो श्रेणी आती है वो आती है स्पेक्यूलेटर्स की। स्पेक्यूलेटर्स वह लोग होते हैं जो कि सिंगल साइड लेके काम करते हैं, जो किसी एनालिसिस पे काम करते हैं, जो गट फीलिंग पे काम करते हैं, जो बाजार के ट्रेंड पे काम करते हैं, जॉबर्स, स्कैल्पर्स, या कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, वो लोग तो ये जो तीनों जो हैं, ये तीनों जो है ट्रेडिंग के एक इकोसिस्टम है। यही तीनों होते हैं जो कि बाजार में ट्रेड करते हैं और लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्री कमोडिटीज क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए अब तक हम लोग यही बात करते आए हैं कि जो ट्रेडर्स होते हैं उनको वॉल्टिलिटी पसंद होती है, तो लोग बात करते हैं कि देखो भाई नॉन एग्री में गोल्ड में अच्छी वॉल्टिलिटी है, सिल्वर में अच्छी वॉल्टिलिटी है। बट अगर आप एग्री कमोडिटीज को देखें, एग्री कमोडिटीज में भी काफी अच्छी वॉल्टिलिटी। आप देखें गुआर सीड में 20% एनुअलाइज वॉल्टिलिटी है 2019-20 की, सोयाबीन में 19% है, कैस्टर में 22% है। तो मेरा आप सभी लोगों से यह निवेदन रहेगा कि जैसे आप लोग एक्सप्लोर करते हैं नॉन एग्री कमोडिटीज को, आप एग्री कमोडिटीज को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए, उसको अपनी स्क्रीन पे लगाइए, देखिए, वॉच करिए, ट्रेड करिए।
वॉलेटिलिटी, लिक्विडिटी सब भरपूर है मार्केट में। और दूसरी बात क्या है कि एग्री कमोडिटीज का मेजर बेनिफिट क्या है, ये जो है ये मेजरली डोमेस्टिक फंडामेंटल्स पे चलते हैं, और इसका क्या है, टच एंड फील फ्लेवर भी आता है। तो इसमें मेरा कहना है, और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि इसमें खर्चा भी कम लगता है। इसमें सीटीटी मोस्ट ऑफ द एग्री कमोडिटीज में, मतलब सारी एग्री कमोडिटीज में नहीं लगता है, बस जो प्रोसेस एग्री कमोडिटीज होती हैं उसमें सिर्फ सीटीटी लगता है। तो हमारे पास वो खर्चा बचाने वाला भी ऑप्शन है। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, आप लोग डायरेक्शनली बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा कैलेंडर स्प्रेड जो मैंने आर्बिट्राजर के लिए बताया था, मान लीजिए सरसों का जुलाई वायदा खरीद के आपने सरसों का अगस्त वायदा बेच दिया, या इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, जैसे भी आपको ठीक लगे आप ऐसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कौन से गुड्स बोलते हैं उसे, गिफिन गुड, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं, जैसे कि सोयाबीन या सरसों, दोनों रिफाइंड ऑयल, दोनों ही जो है खाने के तेल के जो काम आते हैं। तो आप सरसों खरीद के सरसों बेच सकते हैं, सरसों बेच के सोया ऑयल खरीद सकते हैं। तो ऐसे भी आपके पास वेरियस ऑप्शंस रहते हैं जिसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि देखिए क्या होता है कि कई बार हम लोग इक्विटी में ट्रेड करते हैं, बट इक्विटी में हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग स्टॉक्स में पोजीशन बना रहे हैं, और हम मान लीजिए हम टाटा स्टील का शेयर पे तेजी खेल रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि स्टील मार्केट बुलिश है, स्टील के भाव ऊपर बढ़ेंगे तो उससे जो है टाटा को काफी ज्यादा फायदा होगा। तो मेरा आप लोगों से ये आग्रह है और ये कहना है कि अगर आप लोगों को लगता है कि भाई टाटा स्टील के शेयर तेज रहेंगे क्योंकि स्टील में तेजी आएगी, तो आप स्टील में ही डायरेक्ट क्यों नहीं इन्वेस्ट करते। तो ऐसे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, जैसे ऑयल सीड्स में सोयाबीन सोया ऑयल है, तो उनका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो वेंकीज है, यूपीएल है, मॉन्सेंटो है, इनके स्टॉक पे पड़ता है। स्पाइसेस में टर्मरिक जीरे में आप देखेंगे नेस्ले, फ्यूचर कंज्यूमर, कोहिनूर, प्रताप स्नैक्स, इन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। ऐसे ही कोकोड में नेस्ले, पराग फूड्स, टाटा कॉफी, ये सब जो स्टॉक्स हैं जो हम लोग लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसका जो कि कमोडिटी बैक्ड रहते हैं, तो उसमें हम अपने आप को हेज भी कर सकते हैं, या कुछ एक अच्छे रिटर्न्स के लिए हम लोग उनको डायरेक्ट स्टॉक्स में ना इन्वेस्ट करके, अगर हम कमोडिटीज मार्केट या हमारे को कोई पर्टिकुलर सेगमेंट अच्छा लग रहा है तो हम उस कमोडिटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जो मैंने आप लोगों को बताया था जून 2019 का मील का पत्थर, जहां पे कमोडिटी इंडाइसिस को अलाउ किया गया था सेबी के द्वारा ट्रेड करने के लिए, तो उसमें एनसीडीएक्स ने एक इंडिया का पहला एग्री इंडेक्स बनाया, जहां पे एग्री कमोडिटीज का मापदंड बना के एक कंपोजिट इंडेक्स बनाया गया, रिटर्न बेस्ड एग्री इंडेक्स उसको नाम दिया गया। उसकी ट्रेडिंग होती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे निफ्टी में 50 शेयर का कॉम्पोजिशन रहता है, उन 50 शेयरों के मूवमेंट के हिसाब से निफ्टी में उतार चढ़ाव आता है। तो एग्रीटेक्स में ये 10 कमोडिटीज हैं जिनके बेसिस पे, जिन उन कमोडिटीज के भाव के उतार चढ़ाव के बेसिस पे उस एग्रीटेक्स में अंतर आता है। तो इसमें जो लायन शेयर है वो सोयाबीन का है, चने का है, ग्वार सीड का है, सोया ऑयल का है, और ग्वार गम, ग्वार सीड, ये सब एक कॉम्पोजिशन है जिसके बेसिस के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये एग्री इंडेक्स मूव करता है। तो ये क्या है बेसिकली, अगर आपको एक पूरे एग्री सेगमेंट के ऊपर, एग्री इकोनॉमी के ऊपर आपको तेजी जच रही है, आपको लग रहा है, तो वहां पे आप एग्री इंडेक्स बाय करके चल सकते हैं। आपको लगता है नहीं, काफी एग्री कमोडिटीज में काफी भाव बढ़ गया है, इन्फ्लेशन काफी बढ़ गई है, घटने वाला है, तो आप वहां पे बजाय एक कमोडिटी पे एक्सपोजर लेने के आप होल गैमेट, होल बास्केट के ऊपर एक्सपोजर ले सकते हैं बाय सेलिंग एग्रीडेक्स। तो ये जो है ये हमारे रिटेल क्लाइंट्स में ऑल ओवर इंडिया से काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम धीरे धीरे करके इसमें बढ़ रहे हैं, और इसमें वाइडर पार्टिसिपेशन अक्रॉस इंडिया आ भी रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या करा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2017 में ऑप्शन की परमिशन दी गई थी सेबी के द्वारा कि आप कमोडिटीज मार्केट में ला सकते हैं। तो हमने ऑप्शन इन गुड्स करके एक ऑप्शन इन गुड्स करके एक डिफरेंट ऑल्टरनेट अलग सेटलमेंट के तरीके से हम लोगों ने 7 कमोडिटीज में लॉन्च किया है। मस्टर्ड सीड यानी कि सरसों, चना, आरएम सीड, व्हीट वगैरह में। तो ये एक तरीके का अपना ऑप्शन है जो जो इन कमोडिटीज में ट्रेड होता है। जस्ट अ सेकंड।
इसके अलावा आप देखें एनसीडीएक्स का एक कंपनी है बाय द नेम एनआईसीआर। तो वो बाजार में काफी सारी रिपोर्ट्स हैं जो कि पब्लिश करता है कि हाउ दी प्राइसेस हैव बिहेव्ड ऑन दी कमोडिटीज इन एक्सचेंज। ये काफी मॉनसून इनसाइट्स या इन्फ्लेशन के ऊपर, तो एनआईसीआर के माध्यम से काफी सारी रिपोर्ट्स हैं। आप एनआईसीआर या एनसीडीएक्स की वेबसाइट पे जाके इन रिपोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यू विल स्टार्ट रिसीविंग दी रिपोर्ट्स इन योर इनबॉक्स। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको सेबी के बारे में बताया था। सेबी का मतलब एफएमसी का विलय सेबी में हुआ था 2015 में, सितंबर 2015 में। तो उनके आने के बाद क्या क्या नई चीजें हैं जो डेवलप्ड हुई हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि जैसे इक्विटी मार्केट्स का बताते हैं कि एक रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो वही सेम रिस्क मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस कमोडिटीज मार्केट में इंट्रोड्यूस करी गई। वेयर हाउसिंग नॉर्म्स को रिवाइज किया गया और ऑप्शंस इन गुड्स अलाउ करे गए। स्टैगर्ड डिलीवरी को 10 दिन से घटा के 5 दिन करा गया। म्यूचुअल फंड, एआईएफ, पीएमएस, इन सबको अलाउ किया गया। तो हम लोगों ने देखा है कि सेबी के आने के बाद लॉट ऑफ न्यू रेवोल्यूशंस एंड न्यू डेवलपमेंट्स हैव टेकन प्लेस इन द कमोडिटीज मार्केट। अब मैं थोड़ा सा अपने प्रेजेंटेशन के आखिरी हिस्से में आना चाहूंगा, जो कि इन्वेस्टर गाइडलाइंस हैं कि एक इन्वेस्टर को ट्रेड करने से पहले क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, और फिर उसके बाद क्या क्या उन चीज उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो उनको एक्सचेंजेस के सर्कुलर देखने चाहिए, क्योंकि एक्सचेंजेस जो भी मार्केट से कम्युनिकेट करते हैं वो सर्कुलर के माध्यम से करते हैं। तो मेरा आप सभी इन्वेस्टर्स से आग्रह रहेगा कि आप लोग हमेशा एक्सचेंजेस के सर्कुलर जो मेंबर्स के द्वारा या एक्सचेंजेस की वेबसाइट पर अपलोड होते हैं, आप लोग वो पढ़ा करिए। दूसरी बात ये है कि आप एक्सचेंज ऑथराइज मेंबर के थ्रू ही ट्रेड करा करिए। अपनी पूरी डिटेल्स जो कि यूसीसी में मांगी जाती है वो आप अपने ब्रोकर को, अपने मेंबर को सबमिट करिए, जिससे उसका प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड रहे। आप जो भी व्यापार करते हैं उसका बिल, कॉन्ट्रैक्ट नोट आप सब अपने ब्रोकर से मांगिए। आप जो भी आप ट्रेड करते हैं, जो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, आप उसको क्रॉस चेक करिए। एक्सचेंज की वेबसाइट में भी ऑप्शन होता है जहाँ पे आप ऑर्डर नंबर डाल के आप अपने ट्रेड्स को चेक कर सकते हैं कि वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, या ब्रोकर ने जो आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट दिए हैं या जो कुछ हुआ है वो एक्सचेंज सिस्टम में पंच हुआ है या नहीं हुआ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपको अपने ब्रोकर को जो भी मार्जिन और M2M की रिक्वायरमेंट रहती है वो सब आपको फुलफिल करनी चाहिए। इसके अलावा जो आपको स्टेटमेंट, मेंबर होल्डिंग जो कुछ भी है आपके पास, आपको वो रिकंसाइल बराबर लेवल पे करते रहना चाहिए। आपको जो भी पेमेंट्स देनी है वो चेक से देनी है, एनईएफटी, आरटीजीएस से देनी है, कैश कुछ नहीं देना है। तो ये सब कुछ चीजें हैं। और दूसरी बात लास्ट जो है कि फंडिंग फ्रॉम अनऑथराइज्ड इंटरमीडिएट आर नॉट कवर्ड इन द सेटलमेंट। मतलब अगर आप कोई ऐसा फंड देते हैं जो कि अनक्लेम्ड है तो उसका सेटलमेंट एक्सचेंजेस के थ्रू नहीं। अब आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं मेजरली उसका जो विपरीत होगा वो आपको नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको अनरजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरीज के साथ नहीं करना चाहिए, कोई ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए आप किसी ब्रोकर के बैठे हैं, आपने एक जीरे का लॉट खरीदा, आपके पड़ोसी ने जो आपके बराबर में जो बैठे हैं उन्होंने एक जीरे का लॉट बेच दिया, तो आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए। जो बाजारों में आप लोगों ने देखा होगा आजकल एसएमएस में काफी सारे आते हैं, गेट 20% रिटर्न इन 2 days 5 days। ऐसे जो ल्योर करने वाले जो एसएमएस हैं या जो ऐसे जो लोग हैं जो आपको बताते हैं, वो सब चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। जो भी अनसाइंड डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट्स हैं वो आपको नहीं करने चाहिए। बाजारों के में जो रूमर चलती हैं, जो फैलाई जाती हैं, आपको उनसे बचना चाहिए। अपना एनालिसिस करिए, अपनी स्टडी करिए, फिर ही व्यापार में आइए और एंटर करिए। अब मैं जो हमारे जो प्रेजेंटेशन का जो लास्ट पॉइंट है डब्बा ट्रेडिंग, मैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। तो व्हाट इज डब्बा ट्रेडिंग? कोई भी व्यापार जो कि एक्सचेंज के परव्यू के बाहर होता है, यानी कि एक्सचेंज के अनरजिस्टर्ड मेंबर के थ्रू या जो भी सौदा एक्सचेंज में नहीं आता है, वो डब्बा ट्रेडिंग कहलाता है। मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा आप शॉर्ट एंड जीरा खरीद लो, मैंने शॉर्ट एंड जीरा आपको बेच दिया, बट वो व्यापार एक्सचेंज पे आया नहीं, वो आपकी मेरी मुंह जबानी सौदा। तो वो बट आप सेटल उसे एक्सचेंज के रेट पे कर रहे हो और फिर आप एक्सचेंज से आके कहते हैं कि हमारा सामने वाली पार्टी डिफॉल्ट कर गई, ये हो गया वो हो गया। तो ये सब जो चीजें होती हैं ये सब डब्बा ट्रेडिंग के अंतर्गत आती है। जैसे कि इलीगल ट्रेडिंग
carried outside the regulatory purview, जो मैंने अभी आपको बताया, routing of trade outside the exchange operator, यानी कि exchange के authorized member वगैरह उनके थ्रू, या फिर आप जो मतलब एक तरीके से जो भी प्राइस डिस्कवरी हो रही है जो एक्सचेंज के परव्यू के बाहर है, आप उसके थ्रू कोई व्यापार कर रहे हैं, बोली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्सचेंज के माध्यम पे आपको दिखा के, तो वो सब जो है वो डब्बे ट्रेडिंग की ही होती है और ये बहुत रिस्की होती है, बहुत बहुत ज्यादा रिस्की होती है। अब जो है डब्बा ट्रेडिंग में आपको अवेयर रहना चाहिए, आपके पैसे जाने का रिस्क होता है, और सबसे बड़ी बात है ये एक इलीगल काम, ये एक इलीगल काम है, और हम लोगों को अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि हम ना तो डब्बा ट्रेडिंग करें, और जो कर रहा है या जो उसको प्रमोट कर रहा है उसको समझाएं और उसकी जानकारी एक्सचेंज को दें, ताकि एक्सचेंज या सेबी करेक्टिव एक्शन ले सके। तो ये कुछ था डब्बा ट्रेडिंग के बारे में। बाकी मैं इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिड्रेसल के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका कोई भी इशू आपके आपके मेंबर के बीच में या आपका और एक्सचेंज के बीच में रहता है, तो ऐसा नहीं है, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। आप एज एन इन्वेस्टर उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके लिए हर एक्सचेंज ने अपना इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल कर रखा है, जहां पे आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। वहां आपको बुलाया जाएगा, आपसे बात करी जाएगी, सामने वाली जो पार्टी है उससे बात करी जाएगी, दोनों के पक्ष सुने जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है उसमें फैसला लिया जाएगा। तो उसका प्रोसीजर क्या रहता है, सबसे पहले आप ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंज को कंप्लेंट करते हैं, इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर ग्रीवेंस में जाती है, फिर उसका कुछ फैसला आता है या नहीं आ पाता है, फिर वो इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल उसमें जाती है, और फिर उसका जो फैसला आता है माननीय वो आपको मान्य नहीं है, तो फिर आप उस फैसले के खिलाफ आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। आर्बिट्रेशन में रिटायर्ड जजेस रहते हैं जो कि आपकी बात को सुनते हैं, पुराने जो जजमेंट आई है उनको समझते हैं और फिर अपना फैसला लेते हैं। मान लीजिए आपको आर्बिट्रेशन से जो अवार्ड आता है, जो फैसला आता है, आपको वो भी उससे आप नाखुश हैं और आपको फर्दर अपील करनी है, तो आप उसकी जो अपील है वो अपीलिएट आर्बिट्रेशन काउंसिल में कर सकते हैं। फिर वहां आपके केस की सुनवाई होगी, और वहां पे जो फैसला आता है अगर आपको वो भी नाखुश लगता है तो आप सीधा कोर्ट भी जा सकते हैं अपने इस फैसले के खिलाफ। तो ये कुछ तरीका है जिसके थ्रू एक इन्वेस्टर जो है अगर उसको कोई भी ग्रीवेंस होती है तो वो अपने आप को एड्रेस कर सकता है। तो ये था मेरी एक प्रेजेंटेशन, छोटी सी प्रेजेंटेशन जैसे मैंने आपको बताया था। तो अब मैं ये फ्लोर क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए ओपन करना चाहूंगा। तो आपकी तरफ से कोई भी सवाल हो या कोई बात हो तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप लोग अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में भी लिख के भेज सकते हैं कि आपका अ, अ, कोई भी क्वेश्चन रहेगा। देखिए, मैं समझता हूँ हो सकता है कोई क्वेश्चंस ना हो, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एनसीडीएक्स की वेबसाइट है ncdx.com। आप वहां पे जाइए, वहां पे कॉन्टैक्ट अस में हमारी ईमेल आईडीज, हमारे नंबर्स सब अवेलेबल हैं। प्रोडक्ट नोट्स और काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो कि वेबसाइट्स पे अवेलेबल रहती है, तो आप उनको जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ काफी सारा रीडिंग मटेरियल है जो कि काफी नॉलेजेबल और इंसाइटफुल है। तो मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, एक बार आप जाके ncdx.com को विजिट करिए, और जो भी आप लोगों के सवाल हैं आप आस्कस पे या इंडिविजुअल वहाँ प्रोडक्ट मैनेजर्स के टैब में जाके काफी हमारे प्रोडक्ट मैनेजर्स के नंबर हैं, तो आप हमारे से किसी भी कमोडिटीज को लेकर संपर्क भी कर सकते हैं। अगर कोई और सवाल नहीं है तो फिर हम अपने इस वेबिनार को यहीं विराम देते हैं, और मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग दोबारा कि आप लोग अपना समय निकाल के इस वेबिनार में आए और आपने इसको अटेंड किया। एंड थैंक्स अ लॉट, स्टे सेफ एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।